سالک سیرت، سالک سیرت۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے احمد قادری ثاقب روز اکیڈمی سے، جو اپنی زبردست اور پرنور آواز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اس سال کی سیرت کمپٹیشن کے اندر کل 5 مقابلے ہوئے، جس کے اندر قرات کمپٹیشن، نعت کمپٹیشن، اسپیچ کمپٹیشن اور سیرت کوئز کمپٹیشن ہوا۔ سیرت کوئز کے اندر بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ایک سوالات جوابات کی صورت کے اندر ایک مواد کو یاد کیا، اور اس کے بعد ان کے درمیان مقابلہ ہوا۔ تمام ہی اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹس اس مقابلے کے حوالے سے، پارٹیسپیشن جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ ان کے اسکولز میں دیے جائیں گے۔ الحمدللہ کل 1000 سے زائد طلبہ و طالبات، اسٹوڈنٹس جس کے اندر گرلز بھی ہیں، گرلز کی تعداد زیادہ ہے، انہوں نے اس مقابلے کے اندر حصہ لیا۔ تمام مقابلے بتدریجاً ہوئے۔ سب سے پہلے اسکول لیول کے اوپر مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد کوارٹر فائنل ہوا، جس کے اندر ہر اسکول سے ایک بچے نے اپنے اسکول کو ریپرزینٹ کیا۔ اس کے بعد گزشتہ جمعے کو اس کا فائنل ہوا، اور کچھ مقابلے ابھی باقی رکھے گئے تاکہ اس کو کلوزنگ سیریمنی کی زینت بنائی جائے۔ تو اب انشاءاللہ جو بیسک لیول کے اوپر ہمارا کوئز کمپٹیشن تھا، اس کا آغاز ہوگا۔ ہر مقابلے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک بیسک لیول تھا جس کے اندر 3 to 5، 3 سے 4 اور 5ویں کلاس کے بچوں نے حصہ لیا۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ لیول تھا جس کے اندر 5، 6، 7، 8 کے طلبہ نے حصہ لیا، اور اس کے بعد ایڈوانس لیول تھا 9 کلاس آنورڈز، 9، 10 اور 11 کے بچوں نے حصہ لیا۔ بیسک لیول کے اوپر جو کوئز ہے اس کا آغاز ابھی ہم کرتے ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں، جن کا نام کال یہاں سے ہو رہا ہے۔ سدیس، وریشا مرزا، وریشا مرزا، مناہل۔ اگر یہ گرلز سیکشن کے اندر ہیں تو یہاں پر تشریف لے آئیں۔ مناہل، کیونکہ بیسک لیول کے اوپر جو کوئز ہوا اس میں چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، تو اس کو ایک ساتھ مرج کیا گیا۔ طیبہ حذیفہ، انعام گلزیب، ناصر علی۔ یہ کل 6 اسٹوڈنٹس تھے کہ تقریباً 300+ اسٹوڈنٹس کے اندر سے انہوں نے کوالیفائی کیا فائنل کے لیے، اور انشاءاللہ اب ان کے درمیان فائنل مقابلہ ہوگا۔ سدیس، وریشا مرزا، مناہل، طیبہ حذیفہ۔ طیبہ حذیفہ، انعام گلزیب، ناصر علی، مولانا سلمان یعقوب صاحب انشاءاللہ یہ مقابلہ کروائیں گے۔
इंशाल्लाह हम अपना क्विज कंपटीशन का बेसिक लेवल का फाइनल राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरमीडिएट और एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए थी वही हमारे बेसिक लेवल के फाइनलिस्ट के लिए हैं। टोटल हमारे स्टार्टिंग के अंदर 10 राउंड्स होंगे। हर राउंड से पहले इंशाल्लाह उस राउंड का क्राइटेरिया मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। अब हमारा पहला और दूसरा जो राउंड शुरू होगा उसका क्राइटेरिया दोनों का सेम है, ठीक है। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों में आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें हर राउंड के अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे। हर राउंड के अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे और 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई एक दूसरे की बारी में जवाब नहीं देगा। जिसकी बारी आएगी 1 बाय 1, पहले सीरियल नंबर 1, फिर सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 and then 6, ठीक है। इसी तरह हम इसको सीक्वेंस में लेकर चलेंगे। बारी बारी हर एक से सवाल होगा। आगे जाके जब राउंड्स में ये कि आपसे लगातार 3 सवाल 4 सवाल इस तरह से होंगे तब आपको हम बता देंगे। लेकिन राउंड 1 और राउंड 2 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? जी, सीरियल नंबर 1 वहाँ पर लेडीज़ में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जो है वो वीडियोग्राफी वगैरह हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कई ऐसी ख़वातीन हैं जो शरीर पर्दा करती हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि किसी का पर्दा ख़राब ना हो, ठीक है। ये अमानत में भी ख़यानत है और इंशाअल्लाह बहुत बड़ा गुनाह भी है। तो इस बात की कोशिश करें कि अगर पिक्चर ऐसी कोई मजबूरी है बनानी भी है तो पीछे जाकर और ऐसी सूरत इख्तियार करें कि सिर्फ उतनी ही तस्वीर है। जज़ाकल्लाह। जी, रेडी हैं? सीरियल नंबर 1। कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुतों को तोड़ने की क्या सज़ा दी? आग में डाल दिया। राइट आंसर। जी, सीरियल नंबर 2। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों में खिजाब क्या करते थे? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालों की सफेदी इस मिक़दार को नहीं पहुंची थी कि खिजाब की नौबत आती। राइट आंसर। अच्छा, एक बात में इनकी हौसला अफजाई भी करते हैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह के ज़रिए। ये कमोपेश तकरीबन 220 के करीब सवालात हैं जो माशाल्लाह इन मासूम छोटे छोटे बच्चों ने याद किए हैं। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 200 300 से 250 से ज़्यादा 300 के करीब पार्टिसिपेंट्स हों और उसमें से फाइनल 6 में पहुंचना, इनकी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनकी खूब और हौसला अफजाई होनी चाहिए माशाल्लाह और सुभान अल्लाह के ज़रिए से। एक और मैं ये बात हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनसे बता दूँ कि आपका जो फर्स्ट आंसर होगा वही आपका लास्ट आंसर शुमार किया जाएगा। अगर आपने आंसर के अंदर थोड़ी बहुत भी गलती कर दी, थोड़ी बहुत से मतलब अगर आपने एक वर्ड भी गलत कह दिया तो आपका पूरा का पूरा आंसर, अगरचे आपने सही दिया हो, पूरा का पूरा आंसर हम इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि फाइनल राउंड है, इसमें छोटी से छोटी गलती पर भी आप नॉकआउट हो सकते हैं। जी, सीरियल नंबर 3, 5 सेकंड से आपके पास। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम नखला में किस सूरत की तिलावत फरमा रहे थे और इसका जिन्नात पर क्या असर पड़ा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सूरज जिन की तिलावत फरमा रहे थे और इसे सुनकर जिन्नात मुसलमान हो गए। माशाल्लाह। जी, सीरियल नंबर 5। जी, सीरियल नंबर 5। ये उज़ैफ़ा अगर अभी तक आई नहीं आ गई हैं तो यहाँ पर आ जाएं। 1 मिनट इनका वेट कर लेते हैं। तैयबा उज़ैफ़ा। अबे भाई रिकॉर्ड कर क्यों है? कंघी क्या करते थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दाई जानिब क्या करते, फिर बाई जानिब। माशाल्लाह। जी, नेक्स्ट सीरियल नंबर 6। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक छोटा था या बड़ा? सर मुबारक बड़ा था। माशाल्लाह। नेक्स्ट सीरियल नंबर 1, सेकंड क्वेश्चन, राउंड 1। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने ये सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल आप बूढ़े हो गए हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाल्लाह। नेक्स्ट, शेबा, उतबा और वलीद के मुकाबले के लिए किन 3 अंसारियों ने सबकत की? मास, नौस और औस। माशाल्लाह। नेक्स्ट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। मुनाफिकों का सरदार कौन था? अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल। माशाल्लाह। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी किस हाथ में पहना करते थे? सीधे हाथ में। राइट आंसर। जी, सीरियल नंबर 1।
ہمارا راؤنڈ 1 کا لاسٹ کوشچن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب کس تاریخ کو روانہ ہوئے؟ رائٹ آنسر جی. سیریل نمبر 2، جنگ بدر ہجرت کے کتنے ماہ بعد ہوئی؟ 18 ماہ بعد. ماشاءاللہ رائٹ آنسر. نیکسٹ، جنگ احد میں مشرکین کے کتنے گھوڑے تھے؟ جنگ احد میں مشرکین کے 200. رائٹ آنسر. نیکسٹ 5 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے کس رنگ کے تھے؟ کالے رنگ کے. رائٹ آنسر. نیکسٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی کیا کیفیت تھی؟ اور جوتے میں 2 قسمیں تھے. رائٹ آنسر. اب ہمارا شروع ہوتا ہے راؤنڈ نمبر 2. سیم رول ہے، 3 کوشچنز ہوں گے اور ہر کوشچن کے لیے آپ کو 5 سیکنڈز دیے جائیں گے. سیریل نمبر 1، فرسٹ کوشچن، جنگ بدر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جاسوسوں کو مشرکین کی طرف روانہ کیا تھا؟ رائٹ آنسر ماشاءاللہ. نیکسٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنے سال قیام فرمایا؟ 2 سال. آپ کا آنسر غلط شمار ہوتا ہے. رائٹ آنسر ہے 10 سال. نیکسٹ، غزوہ خندق میں مشرکوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000. رائٹ آنسر ماشاءاللہ. جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں. رائٹ آنسر ماشاءاللہ. جنگ احد میں کتنے آدمی باقی رہ گئے تھے جب منافقوں کا سردار دھوکہ دے کر اپنے لوگوں کو واپس لے گیا؟ صرف 700 باقی رہ گئے تھے. ماشاءاللہ. جی، سیریل نمبر 1، سیکنڈ کوشچن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز کیسا تھا؟ کبھی چیتے اور بابو. ماشاءاللہ رائٹ آنسر. جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قسم کا سائبان بنایا گیا؟ کھجور کی لکڑی کا. رائٹ آنسر. نیکسٹ، اسلام کی سب سے پہلے شہید خاتون کا نام کیا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. ماشاءاللہ. نیکسٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے کی ٹوپی کس چیز؟ چاندی کی. ماشاءاللہ. نیکسٹ، ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری یا قتل پر قریش نے کیا انعام رکھا تھا؟ 100 اونٹنیاں. 100 اونٹنیاں. رائٹ آنسر. نیکسٹ، لاسٹ کوشچن، مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء کس دن آیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن. رائٹ آنسر. ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا. جی رائٹ آنسر ماشاءاللہ. نیکسٹ، وہ کتنی اور کون سی صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے؟ وہ 3 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. جی رائٹ آنسر ماشاءاللہ. ہمارے سامنے ایک سیرت سے حوالے سے ایک بات آئی ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے پھر سویا کرتے تھے. سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے. جی نیکسٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی؟ پیر کے دن. رائٹ آنسر ماشاءاللہ. نیکسٹ، ابلیس اپنے آپ کو بہتر کیوں سمجھتا تھا؟ کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا، آدم علیہ السلام مٹی سے. جی رائٹ آنسر. اس طرح ہمارا راؤنڈ 2 بھی کمپلیٹ ہوا اور ایک اسٹوڈنٹ جنہوں نے سیریل نمبر 2 کیا نام ہے؟ بریشہ، وہ جو ہے وہ آگے نہیں جا سکیں گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو ہمارا سارے کسی نے سیزن 5 ہوگا، ہماری خواہش اور ہماری یہ چاہت ہوگی کہ دوبارہ سے پارٹیسپیٹ کریں. جی اب ہمارا ہوگا راؤنڈ نمبر 3. اب آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈر اگر نہیں لگ رہا تو لگنا چاہیے. ڈر لگ رہا ہے کسی کو؟ کسی ایک کو بھی ڈر نہیں لگ رہا؟ کیوں؟ آپ لوگ تو فائنل میں ہو اور آپ کو ڈر نہیں لگ رہا. اب ہمارا
क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं। सीरियल नंबर 1 तैयार है। जंग बदर में, अच्छा दूसरी बात ये कि अब हमारा ये रैपिड राउंड स्टार्ट हो चुका है। रैपिड राउंड का मतलब ये है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश करूँगा आपका आंसर फौरन अगले ही सेकंड में आना चाहिए। अभी का सभी अगर आप रुक गए तो आपका आंसर गलत शुमार हो जाएगा। ठीक है, ये रैपिड राउंड है, इसमें सवाल को सुनते ही आपको फौरन से आंसर देना है। जंग बदर में फरिश्ते किस पर सवार थे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त हिजरत के कितने साल गुजर चुके? 10 साल। जिस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुंचे वो कौन सा दिन था? पीर कली। माशाअल्लाह। जी सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 रेडी है। मेराज किसे कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु मक्का से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से सातवें आसमान और सिदरतुल मुंतहा पर जो तशरीफ ले गए इस वाक़े को मेराज कहते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत किस दुआ का नतीजा थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनका आंसर था और ये आंसर सही नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसका राइट आंसर है। हम लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का सामान तिजारत लेकर मुल्क शाम का सफ़र किया तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। जी इनके 3 में से 2 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं और 1 सही हुआ था। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। और कान किलो तक आ देते। जी सेकंड क्वेश्चन, जंग बदर के मौके पर कुएं के करीब कयाम कर अब्बास बिन मंजर। कुरान पाक में कितनी मस्जिदों के नाम आए हैं? 4 मस्जिदों के नाम आए हैं। मस्जिद अल-हराम, मस्जिद अक़सा, मस्जिद अक़बा, मस्जिद ज़रार। आपका आंसर रॉन्ग होगा, आप रुक गए। मैंने ये कहा था कि आंसर फौरन से आना चाहिए। अगरचे आपने आंसर सही दे दिया लेकिन 1 लम्हे की भी इसमें गुंजाइश नहीं थी क्योंकि ये रैपिड राउंड था। जी रेडी हैं आप? अभी भी हमारा राउंड ये जो 2 पार्टिसिपेंट्स अभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। अगर हो सकता है कि हमारे स्टूडेंट ये भी गलत जवाब दे दें, नहीं बल्कि ये हो नहीं सकता क्योंकि दोनों के 1 के 2 गलत हुए और 1 के। अगर ये राइट आंसर दे देते हैं हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट तो ये डायरेक्टली हमारा जो अगला राउंड होगा वो विनर और रनर अप की तलाश के लिए होगा। ठीक है जी। अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल नबूवत के कौन से साल हुआ? 10 साल। आकर खाना खाने के सिलसिले में क्या फरमाया? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान के लोगों के साथ शेख अबी तालिब 3 साल तक रहे। माशाअल्लाह। और अब हम निकल पड़े। 1000 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे और अगर हम और ऑलमोस्ट हाफ गर्ल्स थी और हाफ बॉयज़ थे। अगर हम हाफ भी करते हैं तो 500 प्लस स्टूडेंट्स में से माशाल्लाह ये हमारे सामने 6 फाइनलिस्ट थे और अब हमारे सामने रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 2। अब देखते हैं अगले राउंड में कि कौन हमें थकाता है। जी चलें, माशाल्लाह आप जा सकते हैं। ये तो मैंने आपसे बता दिया। अब तो हमारा जो टाइम लिमिट था 5 सेकंड्स का वो तो शुरू के राउंड के था, लेकिन अब हमारा जो ये राउंड होगा तो रैपिड ही। अब तो सारे रैपिड राउंड्स ही होंगे, लेकिन इस राउंड में आपको सुनकर हो सकता है थोड़ी खुशी हो आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आ जाए कि इस राउंड के अंदर आपसे लगातार 5 सवालात होंगे।
पहले 3 हुए थे और अब 5 हुए हैं, अब 5 होंगे इंशाल्लाह। जी रेडी है सीरियल नंबर 1। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि अब हम बिल्कुल आखिरी किनारे पर मौजूद हैं। आप में से एक आज का इंशाल्लाह विनर होगा और एक रनर अप। रेडी हैं? कुरान पाक में कुल कितने अंबिया के नाम आए? 36 अंबिया के। हिजरत के वक्त किसने अपना कमर बंद काट कर अबू बकर सिद्दीक़ की बेटा अस्मा फतह मक्का के मौके पर कितने मुसलमान शहीद हुए? 2। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन कुबा से रवाना हुए क्या तारीख थी? 12 अंबिया को। जिस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इब्राहीम की वफात की हुई सूरज हुनैन का। माशाअल्लाह। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रेडी हैं? कुरैश ने जब काबतुल्लाह की तामीर की तो क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तामीर में हिस्सा लिया? ये पतड़ों में शरीक था। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को तकलीफ दी जाती तो क्या? और हाथ देते थे। मेराज के क्या मायने हैं? वसल्लम ने मक्का से बैतुल मुक़द्दस वहाँ से आसमान तक सिदर मेराज करते हैं। आपका आंसर यहाँ पर गलत शुमार किया जाएगा। मेरा भी ज़रूर लिखी हुई है लेकिन ये बात हमारे सामने यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे सामने जो बात मौजूद है वो है मेराज के मायने सीढ़ी के हैं। यहाँ वो वाक़या मुराद है जो पेश आया। हमने यहाँ पर मेराज के मायने पूछे थे, मेराज का वाक़या नहीं पूछा था कि मेराज का क्या वाक़या है। इस तरह हमारे इन पार्टिसिपेंट का भी आंसर गलत हुआ। हम राउंड पूरा करेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा मोहतरमा को अल्लाह ताला की तरफ से सलाम पहुँचाया? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर व बेशतर क्या ग़िज़ा होती थी? माशाअल्लाह। और आज हमारा ये साल के सीरत सीज़न 4 का बेसिक लेवल राउंड भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। और अब मैं पूछ लेता हूँ कि कौन से स्कूल के थे। मुझे भी वाकई मालूम नहीं था कि कौन से स्कूल के ये स्टूडेंट्स थे। माशाल्लाह दोनों ब्रिलियंस ग्रामर माशाल्लाह एक ही स्कूल के थे और दोनों का आपस में मुकाबला था। ब्रिलियंस ग्रामर स्कूल माशाल्लाह। मेयर को भी बहुत बहुत मुबारक हो और रनर को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह एक ही स्कूल के 2 पार्टिसिपेंट्स लास्ट तक पहुँचे। अब हम इंशाल्लाह अपनी तकरीर को आगे बढ़ाते हैं। माशाल्लाह इनकी हौसला अफजाई